हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू माय चैनल जहां हम तैयारी करेंगे केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की। बट दिस वीडियो इज़ आल्सो यूजफुल फॉर अदर टीचिंग एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this, we will discuss about the application of biotechnology in the field of medicine. Basically, in the field of medicine, biotechnology is used for the diagnosis and the treatment of disease. So, in this, first we will discuss about the genetically engineered insulin. Basically, जो insulin है, it is used by the diabetic patient to treat the diabetes. And insulin is a hormone which control or which regulate the glucose level in the blood. So, and it is produced in the beta cell of isolate of Langerhans as a pro-insulin. दैट मीन्स ये जो इंसुलिन है ये अभी इनएक्टिव इंसुलिन है, एक्टिव इंसुलिन नहीं है। एंड प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज A chain, A polypeptide chain, B polypeptide chain, and from the A to B there is another chain which is the C chain, and C chain is act as a linker chain. And जो A chain है it is made up of 21 amino acids and B chain is made up of 30 amino acid. And in between the A and B chain डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है. एंड जैसे ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना शुरू होता है जो सी चेन है ये रिमूव्ड हो जाती है एंड ए चेन और बी चेन दे गेट लिंक्ड टुगेदर. सो ए चेन एंड बी चेन ये जुड़ जाती है आपस में. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज द मैच्योर और एक्टिव इंसुलिन. दिस इज द इंसुलिन. तो व्हाट साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट कि जो मैच्योर इंसुलिन है इसमें सिर्फ ए और बी चेन है, इसमें सी चेन का कोई रोल ही नहीं है. सो देयर इज अ कंपनी विच इज अमेरिकन बायोटेक कंपनी एली लिली इन 1983. इन्होंने जो ए चेन और बी चेन को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है उसको आइसोलेट किया. दैट मीन्स जो ए चेन और बी चेन के जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी सीक्वेंसिंग करके सेपरेटली ए चेन और बी चेन को सिंथेसाइज किया. सो व्हाट दे डिड, सबसे पहले जो डीएनए सीक्वेंस किया, अमाइनो एसिड का डीएनए सीक्वेंसिंग किया. सो दिस इज द डीएनए सीक्वेंस फॉर इन करस्पॉन्डेंस टू द A chain and DNA sequence in correspondence to the B chain. Now these are now introduced in the vector. These are introduced in the plasmid vector. Now this is the plasmid vector. This is the plasmid vector for A and this is for the B chain. Now these A and B DNA sequences are introduced in the vector. Now this vector is the recombinant vector. That means ये जो vector है ये recombinant vector बन गया है. इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन का भी DNA है और ये प्लाज्मिड भी है, प्लाज्मिड का. नाउ दिस vector, this recombinant vector is transferred in the E. coli, is now transferred in the E. coli. E. coli में खुद का भी जीनोम है और ये recombinant vector भी है. Now ये जो E. coli है इसका कल्चर किया जाएगा एंड आफ्टर द कल्चर इसमें क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा एंड पॉलीपेप्टाइड चेन ए और चेन बी भी बनेगी. नाउ इन द कल्चर, आफ्टर द कल्चर ये ए चेन और बी चेन को सेपरेटली आइसोलेट किया जाएगा एंड आफ्टर द आइसोलेशन, सो दिस इज द ए चेन एंड दिस इज द बी चेन. आफ्टर द आइसोलेशन ये दोनों चेन को एक दूसरे के साथ
linked किया जाएगा with the help of disulfide bond, and a structure which is formed is the active insulin. So this is how the genetically engineered insulin is formed. So the next is gene therapy is used as a technique to remove the non-functional or faulty gene, and in place of that faulty gene जो functional gene है उसको insert किया जाता है. So this is the gene therapy, and the first gene therapy was performed to correct the deficiency of ADA enzyme on a 4-year-old girl. तो जो ये ADA enzyme है, ADA enzyme means adenosine deaminase. So this 4-year girl was suffered from the deficiency of ADA enzyme. That means उसकी बॉडी में ये adenosine deaminase enzyme जो है वो प्रॉपरली या तो फंक्शन नहीं कर पा रहा था या फिर वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहा. सो क्या हुआ होगा कि जो ADA जीन है, ADA जीन, जब ये ADA जीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ना ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ट्रांसलेशन होगा. नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन. सो इन दैट कंडीशन ADA एंजाइम नहीं फॉर्म होगा. That means ADA gene is responsible for producing the ADA enzyme. And why this ADA enzyme is important? Because this ADA enzyme is help in the maturation of lymphocyte cells. So अगर lymphocyte cells ही नहीं होगी तो जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा एंड उसे बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाएंगी, एंड द पर्सन suffered from the SCID, that is severe combined immunodeficiency. So to treat this disease or to treat this deficiency क्या किया गया, जो पेशेंट है दैट मीन्स दिस 4-year-old गर्ल, इसके लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया गया. ओके, सो दिस इज द लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट, इसे आइसोलेट किया गया एंड ADA gene, and this ADA gene is a functional gene. This functional gene is introduced in the lymphocyte of patient, and this lymphocyte which is with the functional ADA gene is introduced in the bone marrow of patient. Now the patient has a bone marrow in which lymphocyte with active ADA gene, that means जो ADA gene है वो functional ADA gene है, and now this ADA gene ये क्या करेगा, जो lymphocyte है उसकी maturity में help करेगा एंड इम्यूनिटी उस पेशेंट में डेवलप हो जाएगी, एंड जैसे ही इम्यूनिटी डेवलप होगी एंड इट क्योर द डिजीज. लेकिन ये जो जीन थेरेपी है ये भी एज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट यूज़ किया गया, बिकॉज अगर ये जो जीन थेरेपी है दैट मीन्स जो ADA जीन है, फंक्शनल ADA जीन है, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट किया जाता उस पेशेंट में, तब ये एज अ परमानेंट ट्रीटमेंट काम करता. सो दिस इज द जीन थेरेपी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. बाय बाय.